never be able to play any game. पर मेरे को तो दोनों ही चीजें पसंद हैं. Oh, Gen Z के लिए बहुत tough question है. No, this sucks. This one sucks. Oh no. But I think I'll still choose this one. Well, it says like YouTube, Netflix. Like, imagine you can't go on the Hub, you can't go on Hulu, you can't go on Amazon Video, you can't go on Twitch. Like, you can't do any of that. So I'd at least like to be able to engage and like socialize. This one feels so like just by yourself. Today, Elrod reacts to the hardest game of Would You Rather from Beast Boy Shub's most recent upload. Come on. Who doesn't love a good game of Would You Rather? Yaps. It's in the name. So apparently BBS plays the hardest Would You Rather ever. So I figured why not do it with him. This could be real fun. Welcome. आज हम लोग फिर से चॉइसेस की दुनिया में कदम रखने वाले हैं. वुड यू रादर एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जो मेरे चैनल पे चलती आ रही है, जहां पे हम दो चॉइसेस के बीच में अपने दिमाग में लड़ाई करते हैं. वेल, तुम लोग मुझे देखते हो, लड़ाई मैं करता हूं. तो या let's begin. Okay, be able to explore the universe, be able to explore the unknowns of the earth. Oh. I'm going the universe. I mean, ये ज्यादा cool लग रहा है यार. Even though universe like infinitely big है. Oh, दोनों ही चीज cool है. ये देखो ये. Like the deepest parts of the sea, like there's Atlantis is under there somewhere. Like there's little mermaids and mermen out there. Like you know it. There's a megalodon, all of that shit. It's out there. ये choices अच्छी होती हैं जिसमें But तुम्हारा दिमाग aliens? यार. एक ही चीज चुन सकते हो तुम. Being Explore able the to- unknowns of the earth. with which an means alien? पूरा का पूरा ocean. Like pyramids के नीचे क्या है? बहुत नीचे. Like What's और below the और में जा pyramids? सकते हो तुम. तुम्हें like पता चलेगा या मैं जा सकता हूँ. Like जाना ज्यादा बड़ा experience होगा. और सिर्फ कोई ऐसे पेपर आ गए बस मेरे सामने, हाँ लिखा हुआ है उसमें मजा नहीं आएगा. I mean explore लिखा हुआ है तो मे बी मेरे को breathing techniques और ये सब मिल जाएगा और मैं जा पाऊंगा. फायर रेजिस्टेंस मिल जाएगा मुझे. नो मोर फायर डैमेज. कोर में जा पाऊंगा मैं. बट यार एक्सप्लोर द यूनिवर्स में No fire damage in space. इमेजिन ब्लैक होल में जंप मारो एंड यू सर्वाइव. वरना तुम सर्वाइव नहीं कर सकती ना, खिंच जाती है बॉडी. ऐसा सब सुना है मैंने. यार अर्थ बहुत छोटी दुनिया है. लाइक अर्थ के अलावा होगा ना ये तो. बीइंग एबल टू. See, I'm so decisive. He's still on this question. I would be on question number 6 by now. कैसे करेगी गोकू की वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की वजह से. लाइक मैं पहुंच गया इधर उधर कहीं. हाँ. मस्त होगा वो भी. I see what मुझे you ऐसा did लगता है मैं ये चुनने वाला हूँ बिकॉज यूनिवर्स बहुत बड़ा है. सोचो तुम कितनी चीजें एक्सपीरियंस कर पाओगे. इवन तो हमारी अर्थ में भी बहुत सारे अननोन्स छुपे हैं, पर यूनिवर्स में तो लाइक यूनिवर्स तो यूनिवर्स ही है ना. अर्थ कितना छोटा पार्ट है. तो ये आई थिंक ये बहुत इजी चॉइस है कि मैं यूनिवर्स के साथ. यस, That's an easy choice. आई मीन या कुछ अर्थ लवर्स हैं अभी भी हमारे पास. Bunch of Stub Earth your lovers. toe once every day. Whack your funny bone every other day. What is a funny bone? Like इसकी बात हो Oh रही है. my God, तो जैसे yeah. वो कभी-कभी लग जाता है Or और stub my toe? हाथ I'd में probably- current सा आ जाता है. उसकी बात हो रही है. एक मिनट. The part of the elbow over which passes the या वही चीज है. I would stub my toe and I would just never take socks off or my shoes off ever again. Just shower with them on, take a bath with them on. Have special time with Laura with them on. You know what I'm saying? Like imagine the extra friction you can get too. Stub your toe once You just every wear- day. wear I mean, shoes for strength the rest क्या of your मेरे पे life. depend करती है क्योंकि जरूरी नहीं है ना तेज मारना है. Never take them या फिर off. मुझे दर्द होना चाहिए. ये बड़ा गंदा लगता है यार. मुझे पता नहीं क्यों ये बेटर लग रहा है. Stub your toe once every day. Whack your funny bone every other day. मतलब रोज भी नहीं करना ये रोज करना है भाई. वो आधे हाथ में जो करंट आता है ना, वो अजीब सी फीलिंग है. लाइक ये फिर भी ठीक लग रहा है. Unless they're trying to make a weird joke about the funny bone being your dick. आई प्रॉमिस मैं मैसोकिस्ट नहीं हूँ. नहीं, मुझे पेन पसंद नहीं है, लेकिन ये फिर भी ठीक लग रहा है मुझे. मैं इसके साथ जा रहा हूँ. ना बेकार लगता है वो एल्बो वाला, तो आधा करंट वाला हिसाब किताब. ओह वाओ, ओ भाई अलग ही किंग है लोगों की. I could see that one too because it's like you stub your toe every day or you get hurt every other day. So it's literally half the amount of time, half the amount of pain that you have to endure. Funny but not cool. Oh, ये चॉइस तो मेरे लिए बेकार है. I am both. Be cool but not funny. I'm neither. I'm not funny nor am I not cool. Fuck. I mean funny takes you a long way, right? I mean कौन से वाला funny? ये clown हूँ मैं? ये clown तो नहीं बना. No, being funny gets you bad bitches. I would definitely be funny and not cool because who cares about being cool? Who cares about the perception of others? If you can make other people laugh, that's better. You bring joy to other people, that's the greatest gift of them all. अरे मुझे यहाँ कहीं वो वाला funny की देखो क्लाउन जा रहा है, हंसो उस पे. वो वाला funny नहीं. I mean if you are funny then you are automatically cool, right?
ऐसे काम करती है ये चीज। तो ये वाला फनी डेफिनेटली घटिया वाला फनी है, क्योंकि फनी भी बहुत तरीके के होते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कूल जोक्स क्रैक करने वाला फनी है, ये डेफिनेटली कोई क्लाउन चीजें करने वाला फनी है। और ये कूल कौन सा कूल है फिर? Some might say that beer and biceps is not that funny. आई थिंक ये पीक So not funny that he crushed. He pulled a whole comedy YouTube series off of YouTube. की ब्लाइंडर्स वाला कूल है, क्योंकि वो फनी नहीं है ना, वो सीरियसनेस वाला कूल है। जिस हिसाब से मेरे माइंड में डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना इन दोनों चीजों का, ये ज्यादा कूल है। ये ज्यादा बेटर है। ये वाला फनी डेफिनेटली क्लाउन वाला फनी है, तो आई विल टेक दिस। ओ भाई ठीक है, अलग ही सोच है हमारी। हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द डॉग, हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द कैट। दोनों ही What? ऑकवर्ड है और दोनों ही वियर्ड है। किस बीस्टियलिटी लवर ने ये क्वेश्चन बनाया है? See, he gets no kickback for this, but beer and bicep basically ask the same thing, but with your parents. Like, would you rather see your parents bang every day, or would you rather get in and out once and it stop it forever? I think this is even worse. इसको पता करो, I इसका don't like. निकालो एड्रेस। I'm more of a dog guy than a cat guy, but I don't. सेफ नहीं है। आधे No, I ह्यूमंस can't तो say ऑलरेडी no. ये करते हैं भाई। तुमने देखा है वो किसी कुछ लेते रहते हैं, वो जब डॉग चाटता है पूरा उसके मुंह के साथ, डिस्गस्टिंग भाई। आई डोंट केयर इफ यू आर डॉग लवर या तुम्हें पेट्स बहुत पसंद है, नहीं वो चीज डिस्गस्टिंग लगती है मुझे। जब मैं ब्लेकी भी कई बार ट्राई करती है, अगर मैंने This is where I would eggs just वगैरह close my खा रखे eyes होते हैं, and just dogs click and move होता है, on. स्मेल आ जाती है उन्हें, तो दे आर लाइक चाटने की कोशिश। नहीं, स्टे अवे, हैव सम बाउंड्री। भाई मुझे तो बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है यार, वो कैसे कर लेते हैं वो, जब वो अपनी जीभ से पूरा मुंह चटवा देते हैं अपना। हाय नहीं नहीं, ये एक ऐसा चॉइस मिला है मेरे को जहां पे मेरे को स्किप बटन चाहिए। Have a Oh, lifetime skip, of free yes. international first class plane tickets. Have a lifetime of free 5-star hotel accommodation. भाई I'll take this. ये तो कितना easy choice है। Why would you take this? Hotels में कौन रहता है? Bro, world इतना बड़ा है तुम्हारी। I honestly I agree with that. The travel there, the flight, you can get a prestige flight. Like, you're going to a hotel to another place. Ideally, you're walking around and exploring the other place. Your cheeks shouldn't really be in the hotel that much, unless you're trying to bring in cheeks. Then maybe I can understand the 5-star hotel and you can just rough it out there. तुम्हारी पूरी लाइफ चली जाएगी, तुम्हारी पूरी लाइफ चली जाएगी, तुम इतना ट्रैवल नहीं कर पाओगे। दिस इज सो इजी। फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट्स लो, अपना पूरा वर्ल्ड घूमो। हु केयर्स अबाउट द 5-स्टार होटल अकोमोडेशंस? लाइक तुम डिसेंट होटल में रह के करना। होटल होता किस लिए? होटल एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि तुम अपने बैग पटक सको वहां पे और रात को थोड़ा सा सो सको और बस नहाने का जुगाड़ हो जाए। दैट्स इट। आई विल टेक दिस फॉर श्योर। लाइक बहुत What? the fuck is wrong with people भाई? I agree with that. होटल देखने कौन जा रहा है? ये सबसे स्टूपिड चॉइसेस थी भाई। लाइक लोग क्या चुन रहे हैं लोग? ओह माय गॉड। नेवर बी एबल टू प्ले एनी गेम No. अगेन, नेवर बी एबल टू वॉच स्ट्रीम एनीथिंग अगेन। एग्जांपल यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। Oh. तो यू कांट वॉच वीडियोस, तुम मूवीज नहीं देख सकते, कोई सीरीज नहीं देख सकते, या फिर कोई गेम नहीं खेल सकते। आई मीन मैं तो दोनों ही चीजें करता हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे। That's literally I'm both the gaming things and that I'm I also do. YouTubing तो Yeah. watch/stream डाला है उन्होंने, which means अगर मैं गेम वाला ऑप्शन चुनता भी हूँ, लाइक कि मेरे को गेम खेलनी है, तो I can't be like, but I can do different things. I can talk about the games I play. नहीं, stream anything है bro, not only games. मैं अपने आप को क्यों सोच रहा हूँ? I would probably choose, unfortunately, gaming in this one. God, that sucks. Anything है वो, मतलब YouTube is done. ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए ज्यादा है जो यूट्यूबर्स नहीं है, क्योंकि मैं बार बार अपने अपलोड्स को लेके आ रहा हूँ बीच में कि अरे मैं अपलोड तो कर ही सकता हूँ वगैरह वगैरह, बट नहीं कि या तो तुम मूवीज या सीरीज देखो या फिर तुम गेम्स खेलो। बेसिकली ये चॉइस है। अरे यार ये बहुत टफ चॉइस है, बिकॉज इवन इफ यू प्ले गेम्स, तुम्हें दूसरों के पर्सपेक्टिव्स देखना बहुत पसंद है। लाइक अगर मैंने कोई गेम कंप्लीट करी, आई वांट टू सी कि दूसरे लोगों ने उन चीजों पे कैसे रिएक्ट करा, किस पार्ट्स पे उन्हें रेज हुई, किस पार्ट्स पे उन्हें टाइम लगा, मैंने कौन सा पार्ट कंपैरेटिवली अच्छा खेला या फिर बुरा खेला, ये सब देखना पसंद है। तुम लोग दूसरों के पर्सपेक्टिव्स नहीं देखोगे तो मजा कैसे? ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, स्पेशली फॉर अ पर्सन जिसे गेम्स खेलना पसंद है। लाइक किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए जो गेम्स नहीं खेलता, उसके लिए तो ये वाला ऑप्शन इजी है, नेवर बी एबल टू प्ले एनी गेम। पर मेरे को तो दोनों ही चीजें पसंद है। ओ जेन जी के लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। No, this sucks. This one sucks. no, but I think I'll still choose this one. Well, it says like YouTube, Netflix. Like, imagine you can't go on the Hub, you can't go on Hulu, you can't go on Amazon Video, you can't go on Twitch.
like you can't do any of that. So I'd at least like to be able to engage and like socialize. This one feels so like just by yourself, you know? Because खुद game खेलना is so much better than watching someone. This is Yeah, I'll true. choose this. Wow. लोग सीरीज और मूवीज को इतना पसंद करते हैं भाई. Live a lonely but saintly life. Have lots of friends but be a slightly bad person. Slightly Oh yeah, I'll go slightly bad. Fuck it. It keeps things interesting. bad person मतलब I think if you have a lot And of then also, what is a slightly bad person? This is purely opinion based. Like fuck that. You have lots of friends. We're good. friends, you are already a slightly bad person in someone's life. अगर तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तुम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते. बहुत That's a लिमिटेड very टाइम है तुम्हारे philosophical पास. तुम्हें look अपने at आप it. को भी टाइम देना पड़ता है, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, पार्टनर को भी टाइम देना पड़ता है. तो अगर तुम्हारे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तुम कुछ को सेटिस्फाई कर पाओगे और कुछ को नहीं, तो किसी ना किसी की लाइफ में यू आर ऑलरेडी अ बैड पर्सन कि भाई Yeah, मेरे को that's- टाइम ही नहीं देता हो, दूसरे दोस्तों पे ज्यादा मरता है वगैरह वगैरह. लिव अ लोनली बट से लोनली कितना लोनली? Yeah, I don't want to be alone. दैट डिपेंड्स. यू नीड पीपल इन लाइफ. Yeah. तुम बिल्कुल लोनली नहीं जी सकते फॉर श्योर. ये बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेज साउंड कर रही है मुझे. ये लाइफ किसी को भी नहीं चाहिए आई थिंक. यस सेंटली लाइफ, लेकिन उसी को हम रेस्ट बोलते हैं. इस वाली लाइफ में अगर तुम रेस्ट ले लो ना, वो यही चीज हो जाएगी फिर. तो यू हैव मच बेटर ऑप्शंस इन दिस वन. तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं एंड तुम थोड़े से बैड, पर इट्स ओके. बट यू हैव फ्रेंड्स ना. वो बैड को गुड बनाने के लिए फ्रेंड्स हैं तो सही. मर्डर तो नहीं कर रहा ना मैं किसी का. गलत काम तो नहीं कर रहा ना मैं. स्लाइटली भाई, छोटा सा, थोड़े बहुत. लाइक सुबह मैंने ब्रश नहीं किया, यस आई एम अ बैड पर्सन. ओके आई टेक दिस वन, थैंक यू. या आई मीन ये कौन है भाई, ये कौन है, इन्हें पकड़ो. Yeah. इनका थोड़ा चेक करो. बिकम Those are एनी just कैरेक्टर miserable फ्रॉम people. एनी गेम. बिकम एनी कैरेक्टर फ्रॉम एनी एनिमे. Oh, I'm going anime. ये अच्छा क्वेश्चन है. आई मीन एनिमे में बहुत सारी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे हैं जिसमें लाइक बहुत डिसेंट सी लाइफ होती है वगैरह Shinra वगैरह. जैसे Bacho Man. साइकी के में तुम लिटरली वो बन सकते हो जिसके पास साइकिक पावर्स हैं, या फिर तुम रिच वाला बंदा भी बन सकते हो. कैरेक्टर फ्रॉम एनी गेम, इसमें भी काफी कूल चीजें हैं. लाइक अगर तुम गेम की बात कर रहे हो, I don't know why, ज्यादातर like, माइंड में आता Sora है रेजिडेंट इविल या from फिर एक्शन Kingdom गेम. Hearts. जरूरी थोड़ी है भाई डेटिंग सिम में चले जाओ किसी. मैंने वो 5 हार्ट्स अंडर वन रूफ खेली थी, वैसी किसी गेम में Hey, चले yo. जाओ. क्या दिक्कत है? दोनों में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लाइक किसी को भी चुनो किसी भी चीज से. बट आई थिंक गेम बहुत लिमिटेड है. नहीं एनिमे, आई टेक एनिमे. आई थिंक वो बेटर है compared to the agree. games. I mean decent ही है, बराबर सा. Be Yeah. forced to high five everyone you make eye contact I with. basically do that Salute now. every vehicle you see. This is better. Oh yeah. This Easy. is definitely better. Be forced to high five everyone you make eye contact with. I mean, if we are high fiving, तो वो एक हाथ से ताली तो बज नहीं रही, सामने वाला भी हाई फाइव कर रहा है. Forced मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो चाहे करे ना करे. That just seems like good dope. तुम्हें That बहुत seems like social just a skills good चाहिए energy. इसके लिए. Like anxiety वगैरह तुम्हें खा जाएगी भाई. पर पता है क्या, ये फिर भी बेटर है because there is a chance इसमें तुम्हें अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है. तुम्हारी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है. तुम्हारे पास चांस होगा किसी अच्छे बढ़िया बंदे से मिलने का. इसमें तुम बस एक वियर्डो दिखोगे. लाइक इमेजिन व्हीकल्स जा रही है, तुम लगे पड़े हो, ये भाई तुम्हें पागल घोषित कर देंगे भाई. मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे. ये बेटर है डेफिनेटली. इसमें अगर किसी ढंग के बंदे से तुम्हारा या बंदी से आई कांटेक्ट हुआ एंड यू आर ट्राइंग टू लाइक हाई फाइव, तो चुलबुले लोग भी होते हैं भाई. कुछ लोग होते हैं जो हैप्पी रहते हैं, अगर उनसे मुलाकात होती है तो इजी टू फाइंड हो जाएगा बल्कि. और यू आर बीइंग फोर्स्ड, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. और सामने वाला बंदा अच्छा है, तुम्हें इससे पता भी चल जाएगा. या दिस इज बेटर. I'll take this one, thank you. I agree. I'll take this one, thank you. भाई कौन है ये कौन चुन रहा है? I'm pretty sure इसमें मिसक्लिक्स हो रहे हैं लोगों के. इतने डम चॉइसेस नहीं हो सकते. 39% बताओ. Have the Yeah, the love fact that it's so close to 60-40 in that is actually kind of insane. of your life, but be broke. Be forever alone but rich. Oh, I'd rather be with love forever and be broke. I'd rather like how we are right now. Shit, that's where we're at right now. Be broke Shit. का मतलब क्या है? इसमें मैं रिच नहीं हो सकता. लाइक अगर मैं ट्राई भी करूं तो. एंड बी ब्रोक कितना And love is so homeless special. बिल्कुल ही. अगर तुम होमलेस हो, अगर तुम्हारे पास लाइक लिटरली कुछ भी नहीं है, तो वो लव ऑफ योर लाइफ कुछ भी हो भाई, वो भी तुम्हें लाइक तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहेगी? Why would anyone be there for you when you are
दिस ब्रोक, होमलेस वाला, या फिर तुम कुछ कर ही He's नहीं not सकते, saying homeless, तुम he's saying survive ही broke. नहीं कर सकते। ब्रोक मतलब तो वही हुआ, यू कांट सर्वाइव, तुम बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते। बी फॉरएवर, ये फॉरएवर अलोन, ये क्वेश्चंस ना बहुत वेग होते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आता कौन सा चुनना चाहिए। you फॉरएवर go for अलोन love. बट रिच, क्या मतलब मेरे को I think love is अंटार्कटिका such a छोड़ा है क्या special सारे thing. पैसों के साथ, बंदे कहाँ गए? बट बी ब्रोक से तो मेरे को ये लग रहा है कि अगर वो बिजनेस भी शुरू करना चाह रहा है तो वो फेल हो गया, जो जॉब लेना जा रहा है जॉब नहीं मिल रही। Technically, to me, broke is like your expenses are like lined up with your earnings, right? So even though you may earn a lot, your expenses are there. So technically, you're broke. So technically, you could have the love of your life, and you guys just be hustling and bustling, and then your expenses are always gonna meet your revenue. लाइक कहीं से कुछ जुगाड़ बन ही नहीं रहा है, तो भाई ये भी दुखी हो जाएगी। लव ऑफ योर लाइफ क्या करेगी? प्यार से नहीं चलता भाई सब कुछ। प्यार इज नॉट दी ओनली थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। आई थिंक दिस इज बेटर, लाइक No. लाइफ जीने के लिए। कब तक प्यार करोगे भाई? 2 दिन No. 3 दिन, उसके बाद तो टेंशन होगी कि साला पैसा कहाँ से आए हैं। आई थिंक ये बेटर है। ओह वाह Yeah. भाई, लोग क्या ऐसे ही चुन लेते हैं कि हाँ लव ऑफ द लाइफ तो मिल रहा है, चलो ठीक है। अपना अपना सिस्टम होता है हाँ इसमें भी। ओके, इसे लास्ट करते हैं। हैव योर बॉडी एज नॉर्मली व्हाइल योर माइंड स्टेज शार्प एंड यूथफुल। ओके, हैव योर बॉडी रिमेन यूथफुल व्हाइल योर माइंड एजेस एट अ नेचुरल पेस। हाँ, एट अ No. I'll let my body age. I could do the things to keep it young and do everything I'm doing, working out. You guys see me squatting, lifting. But if I could keep my mind as sharp as it is, like right now, when I'm 60, 70, 80 years old, fuck yeah. What do you mean at a natural pace और फिर stay sharp and youthful? Bro, what the fuck is this choice? ये तो ये second वाला option बहुत better है। Have your body remain youthful मतलब तुम healthy हो, right? Age तो बढ़ी रही है, बस body तो youthful है। While your mind ages at a normal pace, क्या दिक्कत है उसमें? Normal रहना बुरा है? Have your body age normally? Oh, natural pace मतलब कि तुम जैसे बुढ़ापे में वो होता है ना, माइंड सही से काम नहीं करता, वो वाली चीज है ये। ब्रो, दिमाग तो होता है, एक्सपीरियंस तो उतना ही रहेगा। अगर तुम बुढ़े हो गए तो तुम इस माइंड स्टे शार्प और यूथफुल का क्या करोगे? Play games. माइंड का क्या करोगे अगर I body only support need to नहीं be able to करेगी do तो? this Imagine to तुम्हारे play. घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, you Or can't do even anything, this. बस तुम्हारा माइंड शार्प है। आई थिंक ये तो लाइक ये बेटर है। ये तो इंटेलिजेंट ओल्ड पीपल हो गए जो कुछ नहीं कर सकते अपने शार्प माइंड और यूथफुल बॉडी के साथ, यूथफुल माइंड के साथ। ये बेटर है। अगर तुम्हारा नॉर्मल पेस भी है, दिस इज डेफिनेटली बेटर। आई मीन मेरे माइंड में बहुत सारे सिनेरियोस चल रहे हैं, बट ये डेफिनेटली बेटर साउंड कर रहा है मुझे। यूथफुल रहना अपने ओल्ड टाइम में भी, यू आर यूथफुल बॉडी के साथ, लाइक यू आर प्रॉपर, एकदम चल फिर सकते हो, आराम से सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड टाइम ही ऐसा टाइम है जब यू वांट टू बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल Good होता है outlook on आजकल that. के I जमाने में, agree with that. स्पेशली बहुत मुश्किल है ओल्ड लोगों के लिए। लाइक वो सिस्टम नहीं बैठता, यू नो, ओल्ड एज होम वाला सिनेरियो चल रहा है पूरा का पूरा, एंड बच्चे अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे, ओल्ड पेरेंट्स वगैरह को तो क्या ही संभालेंगे, तो बहुत मुश्किल हो रखा है। तो ये चीज अब बहुत जरूरी है। आई थिंक आई विल टेक दिस वन। Wow. या ना, कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइसेस थी भाई, मजा आया मुझे तो। लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम लोगों ने क्या चुना और उसका रीजन क्या था चुनने का। Honestly, we were kind of aligned on a lot of ones, and the ones that we weren't aligned on, like it's not like our mindset was too far off. I just think of like you're always gonna want love in your life. So with that said, I challenge you guys, make somebody laugh today. Spread love, not hate. Like the video, share, subscribe, and I'll see you guys in the next one. Peace.